ایک ایسا بادشاہ جسے کچھ لوگ اسلام کا عظیم ہیرو کہتے ہیں اور کچھ صرف ایک فاتح، Was he truly a hero of Islam? حقیقت میں کیسا انسان تھا؟ کیا اس نے واقعی صرف مذہب کے لیے جنگیں لڑیں یا اس کے فیصلوں کے پیچھے طاقت، دولت، سلطنت کو وسعت دینے کی خواہش تھی؟ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے ایک معمولی سپہ سالار کے بیٹے کو دنیا کے طاقت ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا؟ He stood between two worlds. The devotion of اور کیوں 1000 سال گزرنے کے بعد بھی سلطان محمود غزنوی کا نام تاریخ کی سب سے بڑی بحثوں میں شمار ہوتا ہے؟ him later, his name echoes through history. آج ہم افسانوں سے ہٹ کر حقائق تاریخی کی روشنی میں سلطان محمود غزنوی کی مکمل کہانی جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 11ویں صدی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایشیا کی سرزمین پر کئی طاقتور سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھی۔ مشرق میں ہندوستان کی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں، مغربی میں عباسی خلافت اپنا اثر کھو رہی تھی، جبکہ وسط ایشیا میں نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ انہی حالات میں ایک نوجوان نے تاریخ کا رخ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نوجوان کا نام تھا محمود، لیکن محمود کسی بادشاہ کے محل میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے والد سبتگین خود بھی پیدائشی بادشاہ نہیں تھے، وہ ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن میں ہی غلام بنا لیے گئے تھے۔ قسمت نے انہیں غلامی سے نکال کر فوج تک پہنچایا اور پھر وہ اپنی بہادری، ذہانت اور قیادت کی بدولت غزنوی کے حکمران بن گئے۔ Hail Anushtagin! Long live the Sultan! یہ وہی ماحول تھا جہاں محمود نے آنکھ کھولی۔ بچپن سے ہی اس نے تلواروں کی چھنکار، گھوڑوں کی ٹانپیں اور جنگی منصوبے دیکھے، اس لیے کھیل کے میدان نہیں بلکہ فوجی تربیت گاہیں تھی ان کے لیے۔ سبتگین جانتے تھے کہ صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے محمود کو صرف جنگ نہیں بلکہ دین، سیاست، انتظام، عربی اور فارسی زبان بھی سکھائی۔ اس دور کے علماء اور اساتذہ نے اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کم عمری ہی میں محمود اپنے والد کے ساتھ مختلف جنگوں میں جانے لگا۔ وہاں اس نے پہلی بار میدان جنگ کی سختیاں دیکھی۔ We strike at dawn. The southern flank is vulnerable. And the boy? اس نے دیکھا کہ ایک غلط فیصلہ ہزاروں جانیں لے سکتا ہے اور ایک درست حکمت عملی پوری سلطنت بچا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ سپاہیوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ نوجوان شہزادہ نہیں، ایک غیر معمولی سپہ سالار بھی بن سکتا ہے۔ To the left flank. Cut them off. چند ہی برسوں میں محمود نے اپنی پہلی بڑی کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کی قیادت، تیز فیصلے، بہادری نے اسے فوج میں نمایاں کر دیا۔ Forward. Push the line. Do not let them break formation. لیکن قسمت ابھی اس کا اصل امتحان لینے والی تھی۔ سن 997 میں سبتگین کا انتقال ہو گیا۔ In the year 997, عام طور پر سب کو یہی توقع تھی اور امید تھی کہ محمود فوراً تخت پر بیٹھ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سبتگین نے اپنی وفات سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو حکمران مقرر کر دیا۔ by the decree of our late emir, the throne shall pass. یہ فیصلہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک طرف اسماعیل تخت پر بیٹھ چکا تھا، دوسری طرف محمود ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا جسے فوج کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل تھی۔ اب سوال صرف ایک تھا، کیا محمود اپنے بھائی سے جنگ کرے گا Charge forward for the Sultan! For the Sultan! We are victorious! یا خاموشی سے اقتدار چھوڑ دے گا؟ اسی لمحے غزنی کی سرزمین ایک ایسے اقتدار کی جنگ میں داخل ہوئی جس کا نتیجہ صرف ایک شخص کی قسمت نہیں بلکہ پورے خطے کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ سبتگین کی وفات کے بعد غزنی کی فضا بدل چکی تھی۔ محل کے دروازوں کے پیچھے سازش Ismail is weak. We must act before he solidifies his power. دربار دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ہر شخص یہی جاننا چاہتا تھا کہ غزنی کا اصل سلطان کون بنے گا۔ ایک طرف اسماعیل تھا جسے رسمی طور پر تخت مل چکا تھا، دوسری طرف محمود جس کے پاس جنگی تجربہ، مضبوط فوج اور عوام کے ایک بڑے طبقے کی حمایت موجود تھی۔
The struggle for the throne will not only decide महमूद ने पहले खूनरेजी से बचने की कोशिश की। इसने अपने भाई को पैगाम भेजा कि सल्तनत इसे सौंप दी जाए ताकि खाना जंगी ना हो, लेकिन इस्माइल ने इनकार कर दिया। अब फैसला सिर्फ तलवार ही कर सकती थी। सन 998 में दोनों भाइयों की फौजें आमने सामने आ गई। यह सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं थी, बल्कि गजनी के मुस्तकबिल का फैसला भी था। चंद घंटों की शदीद लड़ाई के बाद महमूद की फौज गालिब आ गई। इस्माइल शिकस्त खा गया, मगर महमूद ने इसे कत्ल नहीं करवाया। इसे कैद में रखा गया, जहां इसने बाकी जिंदगी गुजारी। इस फैसले से महमूद ने अपने मुखालफिन को भी पैगाम दिया कि वो ताकतवर जरूर है, मगर हर मसले का हल कत्ल नहीं समझता। Ismail, though defeated, you are my kin. अब महमूद गजनी का बिला मुकाबला सुल्तान बन चुका था। सल्तनत संभालते ही इसने एक अहम हकीकत को समझ लिया, सिर्फ तख्त पर बैठ जाना काफी नहीं होता, सल्तनत को मजबूत करना पड़ता है। इसने फौज को मुनज़्ज़म किया, नए सिपाही भर्ती किए, घुड़सवार दस्ते तैयार किए Hold the line! Spears forward! Move faster! और सरहदों की हिफाजत मजबूत कर दी। इसकी फौज की सबसे बड़ी ताकत रफ्तार, नज़्मो ज़ब्त और अचानक हमला था। इस दौरान मशरक़ वस्ता हिंदुस्तान की तरफ से इसकी नज़र गई। इस ज़माने में शुमाली हिंदुस्तान एक मुत्तहिद मुल्क नहीं था। यहाँ कई राजे और महाराजे अपनी अपनी रियासतों पर हुकूमत करते थे। Your claims on the southern Sindh border are unfounded, Maharaja. अक्सर रियासतें एक दूसरे से बरसरे पिकार रहती थी, इसलिए किसी एक मजबूत ताकत के खिलाफ मुत्तहिद होना इनके लिए आसान नहीं था। तारीख दानों के मुताबिक महमूद ने हिंदुस्तान पर हमले के कई मकसद रखे। एक मकसद अपनी सल्तनत के लिए दौलत हासिल करना था, क्योंकि मुसलसल जंगें चलाने के लिए खजाना दरकार होता है। दूसरा मकसद अपनी सियासी ताकत बढ़ाना था, ताकि वस्त एशिया में इसकी हैसियत मजीद मजबूत हो। इसके साथ मजहबी जज्बा भी इस दौर के सियासी बयानिए का हिस्सा था। Our influence must extend past the Indus. लेकिन जदीद मौरखीन इस बात पर जोर देते हैं कि इसके फैसलों में सियासी और माशी अवामल भी अहम किरदार अदा करते थे। सन 1001 में महमूद ने हिंदुस्तान की तरफ अपनी पहली बड़ी मुहिम का आगाज किया। इसका पहला बड़ा मुकाबला हिंदुस्तान शाही खानदान के हुक्मरान राजा जयपाल से हुआ। in 1001 Sultan Mahmud marched जंग मौजूदा पेशावर के करीब लड़ी गई। जयपाल ने बड़ी फौज जमा की और इससे यकीन था कि वो महमूद को रोक लेगा, लेकिन मैदान जंग में महमूद की हिकमत अमली ज्यादा मौसर साबित हुई। as the dust rose over Peshawar. The disciplined इसने अपनी घुड़सवार फौज को इस अंदाज से इस्तेमाल किया कि मुखालिफ फौज मुंतशिर हो गई। आखिरकार जयपाल को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार हो गया। बाद में इसे रहा कर दिया गया, मगर इस शिकस्त ने इसकी इज्जत को शदीद नुकसान पहुंचाया। तारीख रिवायात के मुताबिक जयपाल ने इस जिल्लत को बर्दाश्त न करते हुए इक़्तिदार अपने बेटे के हवाले कर दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इसने पूरे खिते को ये एहसास दिलाया कि गजनी में एक नई ताकत उभर चुकी है। इस फतह के बाद महमूद की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इसकी फौज का हौसला बुलंद हुआ, खजाने में इजाफा और गजनी की मैशियत मजबूत हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। अगले चंद बरसों में महमूद ने एक के बाद एक मुहिम शुरू की और हर कामयाबी के साथ इसकी सल्तनत वसी होते गई, मगर इसकी जिंदगी की सबसे मशहूर मुहिम अभी बाकी थी। under the relentless leadership of Sultan Mahmud. वो मुहिम जिसका नाम आज भी तारीख में सबसे ज्यादा लिया जाता है, सोमनाथ। एक ऐसा नाम जिस पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग इसे सिर्फ मजहबी फतह करार देते हैं, कुछ इसे दौलत के हसूल की मुहिम कहते हैं, जबकि जदीद मौरखीन का ख्याल है कि इसके पीछे मजहबी, सियासी और माशी तीनों अवामल मौजूद है। From the jeweled throne of Ghazni, Sultan सन 1025 में सुल्तान महमूद ने अपनी सबसे मुश्किल मुहिम का आगाज किया। इस बार रास्ता पहले जैसा आसान न था। इसकी फौज को वसी रेगिस्तान, पानी की शदीद कमी और लंबे सफर का सामना था। My lord, the
men are exhausted. The water is nearly gone. We बहुत से सिपाहियों ने मशवरा दिया, इतना खतरनाक सफर मुनासिब नहीं, लेकिन महमूद अपने फैसले पर कायम रहा। इसने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, रास्ते में पानी और खुराक का बंदोबस्त किया और कई हफ्तों के सफर के बाद मौजूदा गुजरात के साहली इलाके में वाक़या सोमनाथ पहुंच गया। ensure the water skins are secure. इस वक्त सोमनाथ सिर्फ एक इबादतगाह नहीं था, बल्कि एक अहम मजहबी और माशी मरकज भी था। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे, नजराने पेश करते थे और इसके पास बड़ी मकदार में दौलत मौजूद थी। जब महमूद की फौज सोमनाथ के करीब पहुंची तो मकामी हुक्मरानों और मुहाफ़िज़ों ने सख्त मुज़ाहमत की। कई दिन तक शदीद लड़ाई जारी रही, दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। आखिरकार महमूद की फौज शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। इसके बाद सोमनाथ के मंदिर को नुकसान पहुंचा और वहां मौजूद कीमती खजाना गजनी मुंतकिल किया गया। इस खजाने में सोना, चांदी, जौहरात और कीमती अशिया शामिल थी, जिन्होंने गजनी के खजाने को बेहद मजबूत कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या सुल्तान महमूद सिर्फ दौलत के लिए आया था? यहाँ तारीख दानों की आरा मुख्तलिफ है। बाज़ मुस्लिम मौरखीन इसे मजहबी फतह करार देते हैं, जबकि कई जदीद मौरखीन कहते हैं कि इस दौर के हुक्मरान अक्सर दौलत के सियासी ताकत और अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए भी ऐसी मुहिमात करते हैं। इसलिए सुल्तान महमूद के इस हमले को सिर्फ एक वजह से बयान करना दुरुस्त नहीं होगा। सोमनाथ की मुहिम के बाद महमूद की शोहरत अपने अरूज पर थी। इसका नाम सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं बल्कि पूरे वस्त एशिया और इस्लामी दुनिया में एक ताकतवर फातेह के तौर पर लिया जाने लगा। लेकिन सुल्तान महमूद सिर्फ एक जंगजू नहीं, इसने अजीमुल शान इमारतें बनवाई, सड़कें तामीर करवाई, मदारस कायम किए, इल्म और अदब की सरपरस्ती की। इसके दरबार में अजीम साइंसदान और मौरख अल-बरूनी मौजूद थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में मशहूर किताबुल हिंद लिखी। फारसी के अजीम शायर फरदौसी भी एक अरसे तक इसके दरबार से वाबस्ता रहे, अगरचे बाद में इनके तल्क़ात में इख्तलाफात पैदा हो गए। गज़नी में इस दौर में सिर्फ फौजी ताकत का मरकज़ नहीं रहा, बल्कि इल्म, अदब, सकाफत का भी एक अहम शहर बन गया। लेकिन हर कामयाबी के साथ एक नई आजमाइश भी आती। मुसलसल जंगों, तवील सफ़रों, सल्तनत के वसी इंतज़ाम ने सुल्तान महमूद की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। वो शख्स जिसने दर्जनों मराके जीते थे, अब वक़्त के साथ बेबस होने लगा। सुल्तान महमूद गज़नी ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 23 साल मैदान जंग सल्तनत की तसीह और हुकूमत को मजबूत बनाने में गुजार दिए। वो एक ऐसा हुक्मरान बन चुका था जिसके नाम से वस्त एशिया से लेकर शुमाली हिंदुस्तान तक हुक्मरान को महसूस करते थे। लेकिन वक़्त दुनिया के हर फातेह को एक दिन रोक देता है। मुसलसल जंगों, तवील सफ़रों और हुकूमती जिम्मेदारियों ने सुल्तान महमूद की सेहत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। वो पहले जैसा ताकतवर और तवाना नहीं रहा था, मगर फिर भी आखिरी वक्त तक सल्तनत के मामलात खुद देखता रहा। इसकी ख्वाहिश थी कि गज़नवी सिर्फ एक फौजी ताकत न रहे, बल्कि इल्म, तजारत और तहज़ीब का मरकज़ बने। सन 1030 में तकरीबन 59 बरस की उम्र में सुल्तान महमूद गज़नवी इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसे गज़नवी में सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ आज भी इसका मज़ार मौजूद है। इसकी वफ़ात के बाद खबर पूरे खित्ते में तेज़ी से फैल गई। फौज गमज़दा थी, दरबार खामोश था